کون سی گاڑی لانگ ڈرائیو پہ نہیں جانا، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا اونٹ ان کی سواری تھے، انہیں پتا ہوتا تھا کس اونٹ میں یہ قابلیت ہے کہ وہ کتنا صحرا پار کر سکتا۔ پورے قافلے نے انہیں کہا کہ دیکھیے بی بی، معاملہ یہ جو اونٹ ہے نا آپ کا سواری، یہ قابل نہیں ہے کہ یہ ہر میں خدا تک پہنچ سکے، اور ہر کسی کے پاس اپنی اپنی سواری پوری ہے۔ اگر راستے میں آپ کا اونٹ جواب دے گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کون آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے کر جائے گا؟ پرابلم ہو جائے گی، صحرا میں بھی نہیں چھوڑ سکیں گے، لہٰذا شفقت فرمائیے آپ واپس چلی جائیں۔ وہ خاتون کہنے لگی دیکھو میں اللہ کے گھر کے ارادے سے آئی ہوں، میں تو واپس پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ سبھی قافلے نے سمجھایا بی بی یہ اونٹ اس قابل نہیں ہے۔ وہ خاتون نہیں مانی، قافلہ سٹارٹ ہوا، چلا، وہی ہوا جو اہل قافلہ نے بتایا تھا۔ این بیچ راستے کے ایک جنگل میں اونٹ بیٹھ گیا۔ اب جب اونٹ بیٹھ گیا سارا قافلہ تنقید کرنے لگا، سب نے کہا بی بی آپ کو سمجھایا بھی تھا، دیکھا آپ نے سب کو مصیبت میں مبتلا کر دیا نا، اب کیا کریں؟ نہ آپ کو لے کر جا سکتے ہیں، یہاں چھوڑا تو درندے چیر پھاڑ دیں گے، اب بتائیں آپ نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا۔ راوی کہتے ہیں جیسے ہی سارے قافلے نے اس خاتون کو ماتون کیا، اسے بلیم کیا، اس پہ الزام ٹھہرایا، اس خاتون کی نگاہیں گئی آسمان پر اور اس نے کہا یا اللہ، یا اللہ، مجھے تو نے اپنے گھر کی زیارت کا شوق ڈالا، تو نے میرے دل میں اپنے گھر کی زیارت کا شوق ڈال دیا، نہ مجھے میرے گھر کا چھوڑا، نہ اپنے گھر پہنچایا۔ اگر تیرے سوا کوئی میرے ساتھ یہ سلوک کرتا میں تجھ سے شکایت کرتی، اب بتا کس سے کروں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ذرا تیور دیکھیے گا، ذرا الفاظ کی کاٹ دیکھیے گا۔ یا اللہ اگر تیرے سوا کوئی میرے سے یہ سلوک کرتا میں تجھ سے شکوا کرتی، اب بتا کس سے کروں؟ راوی کہتا ہے اللہ جانے اس کے الفاظ میں کیا تھا، ابھی اس کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا، فوراً جنگل سے ایک شخص برآمد ہوا، مضبوط سے ناکے کی مہار تھام رکھی تھی، بہترین تگڑا قسم کا اونٹ تھا، وہ لے کر آیا، اس نے کہا بی بی سوار ہو جا۔ وہ کہتے ہیں وہ سلامت یار، وہ کہتے ہیں وہ بی بی سوار ہوئی، دیکھتے دیکھتے آنن فانن نگاہوں سے وہ جلدی ہو گئی، سارا قافلہ حیران۔ خیر وہ کہتے ہیں جناب اب ہم قافلہ دوبارہ چلا، ہم جب وہاں پہنچے کہتے ہیں ایک دن طواف کعبہ کے دوران وہی خاتون مجھے کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑی نظر آئی، اس نے پردہ کعبہ کو تھام رکھا تھا، اللہ سے مناجات کر رہی تھی۔ یہ شخص پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا معظمہ مجھے اپنا تعارف تو کروائیے، مجھے بتائیے آپ کون باعظمت خاتون ہیں، بتائیں آپ کا اولیاء خدا میں مقام کیا ہے، آپ کون ہیں، تعارف کروائیے۔ اس خاتون نے کہا تجھے کس نے کہا کہ میں کوئی معظمہ ہوں؟ تجھے کس نے کہا میرا کوئی اولیاء خدا سے تعلق ہے؟ کہا بی بی میں نے اسنائے راہ میں آپ کا ایک کمال دیکھا ہے، آپ کی کرامت دیکھی ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا دیکھیے اول کوئی خدا کو ایسے مخاطب نہیں کرتا، اور اگر کرے تو خدا کسی کو ایسے جواب نہیں دیتا جیسے آپ نے مخاطب کیا، جیسے خدا نے جواب دیا۔ ہر عزادار میرے ساتھ ملے گا تو لطف آئے گا۔ اس نے کہا بی بی بتائیں آپ کون معظمہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں میں کوئی معظمہ نہیں ہوں، بس میں بتانا چاہ رہا ہوں جو آل محمد کی خاطر کوئی کام کرو نا اللہ اجر کیسے عطا کرتا ہے۔ کہا بی بی پھر بتائیے تو صحیح یہ آپ کو کرامت ملی کیسے ہے؟ بی بی کہنے لگی مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، میں شورا بنت مسکا بنت فضا کنیز زہرا ہوں، ہماری جدہ نے زہرا کی خدمت کی تھی، اللہ نے نسلوں میں اجر چلا دیا۔ اہل مدینہ نے کہا ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیوں اہل مدینہ تم کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ انہوں نے کہا جعفر صادق کے گھر سے اتنی بلند کوہرام اٹھتا تھا، آل محمد کی بیٹیوں کا ایسا کوہرام اٹھتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا غریب کربلا کا مدینہ آ گیا۔ دوستو بس اب تیاری کرو، دیکھو جتنی دیر فضائل پڑھا جائے نا، میں عرض کرتا ہوں
वो बीबी दुआ ही देती होंगी, सैयदा दुआ देती होंगी, मगर एक खुश्क रुमाल को इंतजार रहता है मोमिनों के आंसुओं का। बीबी इंतजार करती होंगी कब ये गरीब करबला का पुरसा पेश करेंगे। देखिए हमारे यहाँ रिवायत है मसाइब का आगाज यकम मुहर्रम को रवानी से किया जाता है, वही मुझे हुक्म है। चंद जुमले और ज़हमत तमाम दोस्तों आओ पलटते हैं पीछे। एक अजब मंजर है, कब्र रसूल है मदीना में, कब्र पे लेटे हुए हैं हुसैन। अब जानते हैं मौला हुसैन और रसूल का प्यार बड़ा अजब था। अगर मैं सादगी से भी अर्ज करूँ ना, और आमियाना अल्फाज है मगर आपके और मेरे दरमियान राइज है, रसूल इमाम हुसैन को देखकर और हुसैन रसूल को देख के मचल जाया करते थे, मचल जाया करते थे। रसूल की कब्र पे मैं अगर मंजर कशी करूँ ना, ऐसे हुसैन कब्र रसूल से चिमटे हुए थे जैसे वक्त आखिर सकीना हुसैन के गले लग के चिमटी हुई। अजरकुम अला ज़हरा, ये आले मोहम्मद पे रोने के अय्याम आए हैं। ऐसे कब्र रसूल से चिमटे हुए थे जैसे सकीना वक्त आखिर हुसैन से लिपट कर रो रही थी, रो रहे थे नाना नाना मैं आपकी कब्र को तर्क नहीं करना चाहता, नाना ये जालिम मुझे आपकी कब्र पे रहने नहीं देते, नाना ये उम्मत मुझसे आपकी कब्र छुड़ा रही है। इसके बाद जो इमाम ने जुमला कहा मुझे नहीं पता आज़ादारो उसे कैसे रोके, उस जुमले का इस्तकबाल कैसे करना चाहिए। कुछ हो ना हो आंसू आना तो मुकद्दर की बात है। इमाम स्वादिक फरमाते हैं जो हमारे जद के गम में हाय कहता है ना, वो हाय भी तस्बीह परवरदिगार है। ना रोना है तो हाय जरूर कह देना। मजलूम करबला रो के कहते ना ना मैं चाहता हूँ ये कब्र फटे, मैं हुसैन बीच में समा जाऊं। अजरकुम अला ज़हरा, ना ना मैं चाहता हूँ मैं इस कब्र में समा जाऊं। हुसैन रो रो के गश कर गए। इमाम अली मुकाम का गश करना था, सरकार खत्म मरतबत आप तशरीफ लाए, कहा हुसैन रो अल्लाह से वाले की पासदारी का वक्त आ गया है, मशीयत इलाही के तकाज़ों को पूरा करने का वक्त आया है। हुसैन उठिए, आप अल्लाह के वाले की तकमील कीजिए। वहां से रोते हुए उठे माँ ज़हरा की कब्र पे चले गए। मैं अब आपसे क्या अर्ज करूं कैसे ज़हरा की कब्र को जुदा किया। ज़हरा से हुसैन को जुदा हो गए, ज़हरा हुसैन से जुदा नहीं हुई। कभी काफिले के साथ साथ, कभी करबला के। अजरकुम अला ज़हरा, यही हक है आले मोहम्मद को रोने का। इमाम घर से बाहर है, वहां दरवाजे के पीछे बनी हाशिम की हवेली में, आप जानते हैं ये सुन्नत थी जनाब ज़हरा। देखें बड़ी अजब दर्दनाक बात है। उलमा कहते हैं कि अल्लाह हर इंसान को उसके कमजोर रुख से आजमाता है। ये अल्लाह की सुन्नत है, वो कमजोर रुख से आजमाता है। हुजूर इमाम हुसैन के तखसीसी मसाइल में ये बात आती है, इमाम हुसैन को प्यास बड़ी लगती थी, लिहाजा जितनी देर हुसैन घर से बाहर होते थे ना, जब घर आने का वक्त होता था ना, माँ ज़हरा पानी का प्याला लेके दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती थी। अभी मेरा हुसैन आएगा, बड़ा प्यासा होगा, मैं फौरन पानी पिलाऊंगी। जब ज़हरा दुनिया से जाने लगी ना, कहा बेटी ज़ैनब मैं तो जा रही हूँ, मगर ये ना हो मेरे बाद मेरा लाल प्यासा घर में आए, उसके होंठ प्यासे रह जाए। जनाब ज़हरा चली गई। अगला दिन हुसैन घर में दाखिल हुए, ज़हरा नहीं ज़ैनब पानी का प्याला लेकर खड़ी हुई। कहा भैया हुसैन पानी पी ले। अब जनाब ज़ैनब खड़ी है दरवाजे के पीछे, हुसैन आते हैं। आज हालत ही कुछ और है, आंखों से आंसू जारी है, कंधे झुके हुए हैं। भैया क्या हो गया है? कहा बस बहन अब इस तैयार में नहीं रहा जाता, सफर की तैयारी करो। सफर का नाम आना था, तड़प उठे बनी हाशिम। एक मरतबा इब्ने अब्बास ने कहा, उसने कहा फर्जंदे रसूल देखिए आप जा रहे हैं, आपकी मर्जी है, मगर कोशिश कीजिए वहां ना जाएं, वहां चले जाएं, वो जगह बेहतर है। ऐसे में चोला का फर्जंदे रसूल कम अज कम बहनों बेटियों को लेकर ना जाए। इतना सुनना था जनाब आंखों को जलाल आ गया। कहा इब्ने अब्बास तेरी जुर्रत कैसे हुई? तू क्या गुमान करता है हुसैन सफर में जाएगा, ज़ैनब जिंदा रह जाएगी? मौला
फजाइल पढ़ने की जरूरत हो, बस ये सोच के गिरिया कर लो 9 शबों का मेहमान है ज़हरा का लाल। जानते हो, मैं एक जुमला गरीब करबला का बताऊं, मैं सादगी से बताऊंगा, आप जाने, गिरिया जाने, हुसैन जाने। जानते जनाब अब्बास को महमलों बारे इमाम हुसैन ने क्या तलकीन की, रोने को काफी है अगर बात पहुंचे। जिनके जहनों में 11 मुहर्रम का मसाइल है ना, मुझे तफसील नहीं बतानी पड़ेगी। इमाम ने फरमाया अब्बास, अब्बास एक हमारे साथ नन्हे नन्हे बच्चे हैं, अब्बास ऐसे महमल तैयार करना, ऐसे कपड़े लगाना महमलों के इर्द गिर्द कि कहीं सहराए करबला की रेत नन्हे बच्चों के चेहरों को झुलसा दे। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा। ये 28 रजब को ऐसे निकले हैं और हाय वो 11 मुहर्रम बिन फलाने ऊंट, और जब ऊंट भागे बच्चे जमीन पे लपकते थे, बेबस माएं तड़प के कहती थी जानी असगर का सदका। एक फर्क बताऊं 28 रजब में और 11 मुहर्रम में, एक फर्क है। 28 रजब को अब्बास हाथ में तलवार लेके मदीने के चौराहे पे खड़े होकर कहते थे अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब। और 11 मुहर्रम को अली की बेटियां हुसैन की लाश के पास से गुजरते हुए कहती थी वाह हिजाब। चल पड़ा काफिला, आखिरी जुमले ज़हमत, काफिला चल पड़ा, काफिला जा रहा है मगर पीछे कयामत आ गई है। एक बीमार बच्ची ऐसी है जिसकी आशूरा 28 रजब को ही हो गई है। एक ऐसी है सकीना, एक मदीने में सकीना ऐसी है, एक बच्ची ऐसी है जिसके सारे इकट्ठे चले गए हैं। वो हुजूर अभी पहली मंजिल ना ली होगी, काफिला मदीने से निकला। रावी कहते मजलूम ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे, बार बार मुड़ मुड़ के देखते थे। ऐसा लगता है मजलूम को इंतजार था किसी अमर का। बार बार कहते इतने में एक पीछे से घुड़सवार घोड़ा दौड़ाते हुए आया। उसने कहा अबुल फजल अब्बास काफिले को रोक दीजिए, रोकिए काफिला। कहा क्यों, क्या वजह, क्यों रोके काफिला? कहा जरा पीछे आकर देखो। अब्बास घोड़ा मोड़ के पीछे गए, फौरन घोड़ा भगा के आए। कहा मजलूम जरा उतर आइएगा। क्यों? कहा पीछे आइए, सोरा कनीजों के झुरमुट में आ रही है। अजरकुम अला ज़हरा, पीछे सुगरा आई, सुगरा का सोना था, सारी बीवियां काफिले से नीचे आ गई। सुगरा आई, एक मतबा बार बार गले लगने शुरू हुई, इस उम्मीद में शायद मुझे कोई ले जाए, शायद कोई साथ बिठा ले। मशीयत के तकाजे और थे। जब मायूस हुई ना, एक मुश्किल कुशाई होती नजर आई। सुगरा ने असगर गोद में ले लिया और कहा देखो जाना है जिसमें जाओ, असगर को मेरे पास रहने दो। मगर असगर मशीयत का तकाजा था, असगर की मशीयत को करबला में जरूरत थी। कहा कोई जबरदस्ती नहीं लेगा, जिसकी गोद में जाता है वो ले जा। माँ रुबाब आगे बढ़ी, असगर नहीं आया। सकीना ने भी कोशिश की होगी, असगर नहीं आया। कोशिश की होगी जनाब अली अकबर ने, असगर नहीं आया। हुजूर रावी कहते इतने में मौला हुसैन आगे बढ़े, अपने पाकीज़ा होंठ असगर के कानों से लगाए। असगर हुआ के हुसैन की ओर। पूछने वालों ने पूछा क्या कहा? आवाज आई एक ही जुमला कहा, असगर अगर तुम मदीने में रह गया तेरे हिस्से का तीर खोल कर। अजरकुम अला ज़हरा, बस मैं आखिरी जुमला बयान कर रहा हूँ और फिर आपकी ज़हमत तमाम। बस वो सुगरा मायूस हो गई, अकबर का दामन पकड़ लिया। कहा भैया अकबर ये क्या बात है? देखो बाबा की हर बहन साथ जा रही है, उनकी बहनें साथ जा रही हैं, आपकी बहन पीछे रह रही है। अकबर आप मेरी मुश्किल कुशाई कीजिए। अकबर मजलूम के सामने आ गया। ए बाबा, बाबा आपकी सारी बहनें जा रही हैं, मेरी बहन पीछे रह रही है, बाबा मेरी सुगरा तनहा मर जाएगी। मौला की आंखों में आंसुओं की बरसात थी। बस